Hello friends, welcome to Sri Saraswati Academy. Today we are going to learn chapter 5 Social and Religious Reform. As you know that before independence in our India there were evil customs and tradition, and from this evil and customs and traditions some social reform came forward and vanished this evil customs and tradition from the society and which type of work they did. In this lesson we are going to learn all these things. Along with the spread of English education, there was spread of new thoughts, new ideas, new philosophy. Indian were also introduced to Western thoughts and culture. Due to it, there were changes in social, religious, economic, and cultural aspect of Indian society. The modern educated Indians became aware that backwardness of India was due to superstitions, casteism, old customs, class system, and lack of critical outlook. It was necessary to eradicate the flaws and undesirable tendency for progress of the country and to create a new society based on principles of humanity, equality and fraternity. The educated thinkers started social awareness through writing to solve the various problems in the society. The intellectual awakening in the contemporary society is called Indian Renaissance. सो मॉडर्न एजुकेटेड इंडियंस बिकेम अवेयर अबाउट वॉट की बैकवर्डनेस जो है अपनी सोसाइटी का कैसे निकाला जाए, सुपरस्टिशंस एंड द कास्टिजम्स जो है उसको किस तरह से बाहर निकाला जाए. बिकॉज इन आवर इंडिया देयर वॉज मेनी इविल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस एंड फ्रॉम दीज कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस इंडिया वॉज बैकवर्ड एट दैट टाइम. So it is necessary to eradicate the flaws of the undesirable tendency for the progress. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया था सबसे पहले कि इंडिया को इंडिपेंडेंस अगर दिखाना है तो दिलाना है तो सबसे पहले जो ये इविल कस्टम्स एंड ट्रेडिशन है उसको बाहर निकाला जाए और उसके लिए किस तरह से हमको काम करना है ये उन्होंने पहले सोचा. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट टू क्रिएट द न्यू सोसाइटी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द ह्यूमैनिटी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी. यानी कि जो न्यू सोसाइटी हमको तैयार करनी हो किसके आधार पर करनी है तो ह्यूमैनिटी, इक्वालिटी एंड द फ्रैटर्निटी. तो ह्यूमैनिटी मीन्स मानवता, इक्वालिटी मीन्स समानता एंड फ्रैटर्निटी मीन्स बंधुता. यानी हमारी सोसाइटी जो है वो इन तीनों सिद्धांतों के आधार पर खड़ी रहनी चाहिए. एंड द एजुकेटेड थिंकर्स स्टार्टेड सोशल अवेयरनेस थ्रू द राइटिंग टू सॉल्व द वेरियस प्रॉब्लम्स. तो उनके राइटिंग से उन्होंने ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की, जिसी को इंडियन रेनेसेंस कहा गया है. era of the social and religious reform. Brahmo Samaj. In 1828, Rajaram Mohan Rai established the Brahmo Samaj in Bengal. He had studied many languages and religions. Through it, his ideology of the Advaita philosophy was developed. Monasticism, caste and class equality, protest against rituals and following the way of prayers were the principles of Brahmo Samaj. He opposed sati practice, child marriage, pardha system. He promoted widow remarriage and female education. He founded Hindu College of Calcutta. Brahmo Samaj established by Rajaram Mohan Rai in 1828. He had studied many languages and religions. Through his ideology of the Advaita philosophy was developed. यानी कि उनकी जो आइडियोलॉजी है वो अद्वैत फिलोसॉफी से इन्फ्लुएंस्ड है. मोनिस्टिज्म मीन्स क्या कि एक ही भगवान है ये मानना, ऐसा नहीं कि हर एक रिलीजन का अलग अलग भगवान है. सो मोनिस्टिज्म को प्रमोट करते थे. देन कास्ट एंड क्लास इक्वालिटी, वो कास्टिज्म नहीं मानते थे एंड क्लास इक्वलिटी के ऊपर भरोसा करते थे. एंड ही ऑल्सो प्रोटेस्ट अगेंस्ट रिचुअल्स एंड फॉलोइंग द वे ऑफ द प्रेयर्स वेयर द प्रिंसिपल ऑफ द ब्राह्मो समाज. तो किस तरह से क्या प्रेयर करना है ये ब्राह्मो समाज बताता था उस समय सोसाइटी को. और उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को अपोज किया था विच वेवर द इविल कस्टम्स इन आवर सोसाइटी लाइक सती सिस्टम, देन चाइल्ड मैरिज, पर्दा सिस्टम जो था उन्होंने उसको अपोज किया था. और उन्होंने किस चीज़ को प्रमोट किया था तो विडो रीमैरिज एंड फीमेल एजुकेशन. तो सबसे पहले गर्ल्स एजुकेशन होना चाहिए, लड़कियों को एजुकेट होना चाहिए, ये उन्होंने समाज को बताया था. ही फाउंडेड द हिंदू कॉलेज इन कोलकाता. ही क्रिएटेड पब्लिक अवेयरनेस थ्रू द न्यूज़पेपर संवाद कौमुदी. तो उनका जो पेपर था न्यूज़पेपर, उस संवाद कौमुदी से उन्होंने लोगों को. सत्यशोधक समाज. इट इज़ फाउंडेड बाय महात्मा ज्योतिबा फुले in 1873 एंड इट इज लिटी एंड दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द अनटचेबिलिटी. यानी कि जो अनटचेबिलिटी का जो भेदभाव था तो उस समय उन्होंने वो उसके अगेंस्ट थे. दे एडवोकेटेड एजुकेशन
अमंग द डिप्रेस क्लास एंड वेमेन, एंड जो भी शेड्यूल कास्ट था या डिप्रेस क्लास था उनके लिए और वेमेन के लिए उन्होंने एजुकेशन जो है वो किस तरह से प्रोवाइड करना चाहिए इसके बारे में सोचा था. एंड ही रोट मेनी बुक्स लाइक ब्राह्मणांचे कसब, गुलामगिरी, शेतकऱ्यांचा आसूड अँड द साइज द ट्रेडिशंस एंड द कस्टम्स दैट मेड डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द मैन एंड वुमेन. और ये जो स्त्री पुरुष भेदभाव था ये उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था. सो दीज वेयर द वैल्यूज गिवन बाय द महात्मा ज्योतिबा फुले. And Arya Samaj was founded by the Swami Dayananda Saraswati in 1875. He wrote the book सत्य प्रकाश as the contemporary on the Vedas. जो वेदास के ऊपर उन्हें उसका नाम है सत्य प्रकाश. So he mostly believed on the ancient Vedic civilization and he must prefer them, and that's why he told the slogan is there, the go back to the Vedas, because at that time there were no caste discrimination. So many education institutes were established through the medium of the Arya Samaj. Ramakrishna Mission was established by Swami Vivekananda, a close disciple of the Ramakrishna Paramhans. यानी रामकृष्ण परमहंस जी थे, उनके जो ये शिष्य माने जाते हैं. In 1897 he established this mission, एंड रामकृष्ण मिशन वर्क फॉर द सर्विस टू द सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी के लिए, समाज के लिए इन्होंने काम किया है. द मिशन वर्क फॉर द प्रोवाइडिंग हेल्प टू द फेमिन स्ट्राइकन पीपल, दैन पेशेंट्स एंड मेडिकल हेल्प टू द पुअर, female education and the spiritual growth. So this type of work done by the Ramakrishna Mission. He was an excellent orator. He attended the Parliament of the Religious at Chicago in 1893 at representative of the Hinduism. यानी शिकागो में जो एक कॉन्फ्रेंस हुआ था उन्होंने एज अ इंडियन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द हिंदुज़म वहाँ अपना स्पीच दिया था. ही वॉज वेरी गुड ऑटर, यानी कि जो वक्ता रहते हैं उनको ऑटर कहा जाता है. अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड वॉज द मैसेज गिवन बाय हिम टू द इंडियन यूथ. यानी कि जब तक आपको अपना गोल नहीं मिल जाता तब तक आपको अपना प्रयास जो है करना चाहिए. दिस वॉज द मैसेज गिवन बाय द स्वामी विवेकानंद. Social reforms among the Sikhs. The Sikh Sabha was established at the Amritsar to achieve reform to Sikh religion. This institute worked for spread of education among the Sikh community and break modernization among them. Later the Akai movement continued for tradition of the Reformation. तो सिख जो समाज था उनको आगे बढ़ाने के लिए इस इंस्टीट्यूट ने काम किया है. एंड फॉर द एजुकेशन, यानी कि द इंस्टीट्यूशन वर्क फॉर द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन अमंग द सिख कम्युनिटी.